Hello everyone. So we have started in 11th science biology. We have started the chapter number 8, that is in cell cycle and cell division. So before we understand what is the cell cycle and cell division, we should know some important terms which is used during the chapter, that is in cell cycle and cell division. So before this chapter, we have learned about the cell, the structure and function of the cell, the types of cell, what are the components which is involved in the cell. So what is the characteristic of cell? So you know all the important things about a cell. Now in cell cycle and cell division, you will know how the cell will grow and how the cell will divide itself. So the one cell can be converted into 2 cell, can be converted into 4 cell, likewise by means of a cell division process. So before we understand cell cycle and cell division, we should know some important terms. First term, that is in DNA or RNA. DNA or RNA, the full form of DNA, that is deoxyribonucleic acid, and full form of RNA, that is ribonucleic acid. So DNA, that is in deoxyribonucleic acid, and RNA, that is in ribonucleic acid. So generally this DNA and RNA is a type of a nucleic acid. किसके टाइप से? दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के टाइप से. Generally this DNA is present inside the nucleus of the cell. कोई भी अगर सेल है, सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज ए न्यूक्लियस, तो उसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है? दैट इज ए डीएनए. सो वी कैन से डीएनए so DNA act as an genetic material. In most of the cell, DNA act as a genetic material. Genetic material, that means whatever the characteristic, whatever the structure and function of a specific cell or a specific organism is all, can say information is stored in the specific material which is known as a genetic material. जैसा यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वैसा ही कोई सेल का या तो कोई ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होगा या तो फंक्शन होगा. ओके, सो मोस्टली डीएनए विल एक्ट एज एन जेनेटिक मटेरियल. और ये जो डीएनए है मोस्टली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए मोस्टली इज एन डबल स्ट्रैंडेड. डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है एक स्ट्रैंड और ये जो है वो दूसरी स्ट्रैंड. सो दिस इज एन डीएनए. दिस इज वन स्ट्रैंड and this one is a second strand. So this type of a structure of DNA is found in cell. Second one, that is an RNA. RNA, that is an ribonucleic acid. Generally ribonucleic acid, that is an RNA, is of 3 type, that is mRNA, rRNA, tRNA. mRNA, that is messenger RNA, rRNA, that is ribosomal RNA, tRNA, that is transfer RNA. This RNA helps in protein synthesis. ये तीनों के तीनों जो RNA है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन प्रोटीन. ओके, एंड जनरली दिस RNA विल सिंथेसाइज फ्रॉम द DNA. RNA बनेगा किस में से? DNA में से ही बनेगा. Okay, so main component of our body, that is in DNA, which is responsible for the synthesis of all the components in our cell, in our body, in any organism.
Okay, so that's why this DNA is known as a genetic material. So this is an one term, that is in DNA as well as RNA. Second one, that is in chromatin. Chromatin material. DNA है वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा. ओके, अब ये जो DNA है वो पूरा का पूरा एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना देगा. इट इज़ अ एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड, सी दिस टाइप ऑफ हैफेजार्ड अरेंजमेंट ऑफ DNA. अगर DNA का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन. सो दिस क्रोमेटिन is a structure of this kind of an arrangement of an DNA, and this chromatin is generally found in the cell nucleus in interphase. हमारा जो सेल है वो जनरली दो फेज में होता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज. सो ड्यूरिंग इंटरफेज our DNA is in the form of an chromatin. So in interphase DNA is in the form of chromatin material. So here you can see this is a nucleus. उसके अंदर क्या है, इस तरह का DNA का अरेंजमेंट है. This material is known as an chromatin material. It is also known as a genetic material because it is made up of an DNA. ओके, सो दीज आर द टर्म्स. अगर आगे जा करके हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करें तो उसमें क्रोमेटिन आएगा, DNA आएगा, RNA आएगा. सो यू शुड नो व्हाट इज़ DNA, व्हाट इज़ RNA, व्हाट इज़ क्रोमेटिन एंड व्हाट आर दिस इम्पोर्टेंट टर्म्स. Okay, next one, that is in chromosomes. So this is in DNA. It is converted into this kind of material which is known as in chromatin. But in M phase, chromatin in interphase. क्रोमेटिन मटेरियल है वो होगा, लेकिन सेल कौन से स्टेज में होगा, तब ये DNA क्रोमेटिन मटेरियल में होगा, दैट इज़ इंटरफेस. लेकिन जब सेल का डिवीजन होगा, सेल विल गोइंग टू डिवाइड, देन दिस क्रोमेटिन विल कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. So during cell division process, this chromatin material is converted into a specific structure which is known as an chromosome. इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेल को डिवाइड होना है. सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, इट ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड. और जब इसका डिवीज़न होगा तो ऑब्वियसली उसका जो डिवीज़न है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए. अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इक्वल प्रोपोर्शन में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके, तो उसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जिसकी मदद से ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो DNA है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो सके. तो आप देख सकते हैं दिस इज़ एन क्रोमोसोम. तो यहाँ से अगर ये डिवाइड होगा देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल प्रोपोर्शन. Half the DNA, half the genetic material will come in one cell and half the genetic material will going in another cell. Okay, so in this way the cell will divide itself. The cell will divide the genetic material during the cell division process. So this is an chromosome. अब इसको क्या हम बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे. ओके, जनरली क्रोमोसोम है वो दो तरह के होते हैं, दैट इज एन होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स.
नाउ व्हाट इज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. 23 पेयर है, टोटल नंबर इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बट इन ह्यूमन बींग दिस क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ पेयर. पेयर में होते हैं तो ऑब्वियसली सपोज दिस वन, this one is one pair, and this one is you can say second pair. तो इस तरह से हमारे अंदर ह्यूमन बींग के अंदर कितनी पेयर्स होंगी? 23 पेयर ऑफ एन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बींग्स. अब ये जो एक पेयर है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दिस बोथ क्रोमोसोम्स आर नोन एज एन होमोलोगस क्रोमोसोम. इसी तरह से ये जो दूसरी पेयर है उसके दोनों क्रोमोसोम्स है उसको भी हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके. अब होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम में होंगे इट इज एन सिमिलर. सपोज यहाँ पर आई के कलर का जीन है. ओके, जीन. सपोज दिस इज एन डीएनए. डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ एन मेनी जीन्स. डीएनए में कितने सारे जीन्स होते हैं और ईच एंड एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है एक जीन है और ये जो जीन है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर ऑफ आई. आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किसी का कलर आई का कलर है वो ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एन कलर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई इज डिपेंडिंग ऑन दिस स्पेसिफिक जीन. यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, जीन में प्रेजेंट होगा, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी कि आई का कलर है वो कौन सा होगा. अगर ब्राउन कलर की आई का जीन प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इंडिविजुअल के अंदर जो कलर होगा अब आई का वो कैसा होगा? ब्राउन होगा. अगर ब्लू कलर का जीन है तो ब्लू आई होगी, ब्लैक कलर का जीन है तो ब्लैक आईज होगी. ओके, सो यहाँ पर क्रोमोसोम है उसमें क्या होंगे? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए ओनली. तो यहाँ पर क्या होंगे? जीन्स होंगे. सपोज यहाँ पर आई के कलर का जीन है, दिस इज एन कलर ऑफ एन आई. तो यहाँ पर भी क्या होगा? कलर ऑफ आई ही होगा. ओके, so you can see each and every gene which is found in both the chromosomes are equal. सेम कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स होंगे. यहाँ पर देखिए कलर ऑफ आई इट इज़ एन वन कैरेक्टरिस्टिक, कलर ऑफ आई इट इज़ सेम कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ फाउंड इन दी अनदर क्रोमोसोम ऑफ एन होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, तो यहाँ पर सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है. यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगी वो सेम यहाँ पर प्रेजेंट होगी. यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होगी. लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका कलर है वो सेम हो. सपोज यहाँ पर देखिए कलर ऑफ आई है, यहाँ पर ब्लू हो सकता है, यहाँ पर ब्राउन भी हो सकता है, दोनों में ब्लू हो सकता है, दोनों में ब्राउन हो सकता है, दोनों में ब्लैक भी हो सकता है, दोनों में एक में ब्लू हो एक में ब्राउन हो, एक में ब्लैक हो एक में ब्लू हो. इस तरह का जीन है वो हो सकता है. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? दैट इज़ एन कलर ऑफ आई विच इज़ एन सेम कैरेक्टरिस्टिक, that is an one characteristic, and that's why this chromosome is known as an homologous chromosome.
because whatever the gene which is present in both the chromosome is coding for and same characteristic. कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, बोथ द क्रोमोसोम हैज़ जीन ऑफ कलर ऑफ आई एट एन सेम पोजीशन. एक ही पोजीशन पर कलर ऑफ आई के जीन्स है एंड दैट्स वाई दिस होम क्रोमोसोम्स आर नोन एज एन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, यहाँ पर भी सपोज दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पर होगा कलर ऑफ स्किन, तो यहाँ पर भी क्या होगा कलर ऑफ स्किन. अब स्किन का कलर है, किसी का वाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है. ओके, सो यहाँ पर देखिए कलर ऑफ स्किन, यहाँ पर भी जो जीन होंगे विच इज़ डिफाइंड अ कलर ऑफ एन जीन. लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में ही ब्लैक कलर के का ही जीन होगा, दोनों में ही वाइट कलर का जीन होगा. एक में ब्लैक भी हो सकता है, दूसरे में वाइट हो सकता है, दोनों में वाइट भी हो सकता है, दोनों में ब्लैक भी हो सकता है. सो कैरेक्टरिस्टिक इज एन सेम. ओके, कैरेक्टरिस्टिक इज एन सेम बट द एक्सप्रेशन में बी डिफर. एक्सप्रेशन यानी कि कौन सा कलर प्रोवाइड करता है. अंडरस्टूड? वट एवर द एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन बाय द जीन, द कैरेक्टरिस्टिक मे बी डिफरेंट बट द कैरेक्टरिस्टिक इज एन सेम, and that's why these chromosomes are known as an homologous chromosomes. Okay. Now what is non-homologous chromosome? Non-homologous chromosome यानी कि यहाँ पर दो पेयर है, एक पेयर का एक क्रोमोसोम, दूसरी पेयर का एक क्रोमोसोम, दोनों अगर हम कंपेयर करते हैं, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, देन इट इज़ नोन एज एन नॉन होमोलोगस. नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. बिकॉज ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी. यहाँ पर भी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो अलग होगी, डिफरेंट होगी. यहाँ पर भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो डिफरेंट होगी एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कलर ऑफ आई, लेकिन यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कलर ऑफ स्किन. इट इज़ एन डिफरेंट. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. सो यू नो अबाउट एन क्रोमोसोम, homologous chromosome as well as non-homologous chromosomes. अब next one that is in chromatids. Chromatids. So in chromosome you can see here this kind of specific structures are found and this structure is known as an chromatid. इसको क्या बोलेंगे हम? chromatids बोलेंगे. So generally in case of an one chromosome there is a two chromatids are found. This is an one chromatid and this one is an second chromatid. Okay, so in one chromosome two chromatids are found, first one as well as second one. The central part of an chromosome is known as an centromere. Central part is known as an centromere. So both the chromatid of an chromosome is held together by the centromere. दोनों क्रोमेटिड को ज्वाइंट करवाने का काम कौन करता है? दैट इज एन सेंट्रोमियर. ओके, अब यहाँ पर देखिए द क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स है उसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स है एंड दैट्स वाई ओके दिस इज नोन एज एन सिस्टर क्रोमेटिड. इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड. क्योंकि दोनों क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, उसका पेरेंट है वो क्या है? एक ही है.
ये जो क्रोमोसोम है उसका पेरेंट है और दोनों क्रोमेटिड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ए सिस्टर क्रोमेटिड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन ओनली वन क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई। सपोज ये दूसरा क्रोमोसोम है विच इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वेदर इट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर ये जो क्रोमेटिड है कोई दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम की है, दो अलग क्रोमोसोम्स है, उसकी अगर क्रोमेटिड को हम कंपेयर करें देन दिस इज नोन एज ए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। Okay, you can see here one chromosome having in two chromatid, this chromosome is also having two chromatid, these two chromatid of only one chromosome is known as a sister chromatid, but the chromatid of two different chromosomes is known as a non-sister chromatid. Understood about a non-sister chromatid as well as sister chromatid? Okay, this two is known as a sister chromatid, this two is also known as sister chromatid because it is a part of an one chromosome, but here the two chromatid of an two different chromosome is known as a non-sister chromatids. Okay, next one that is an haploid. Haploid, diploid as well as polyploid. It is a kind of an ploidy in specific organism. Suppose कोई organism है, उसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स होंगे. सो इफ दिस न्यूक्लियस इज हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं है, एक सिंगल क्रोमोसोम है विच डिनोट्स फॉर एन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग एन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. ओके, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो नहीं होंगे, एक ही क्रोमोसोम होंगे विच इज़ नॉट इन अ पेयर. सो अगर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर नो पेयर में क्रोमोसोम्स है वो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे, नो होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, यहाँ पर ये जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, पेयर में नहीं होंगे, जो भी क्रोमोसोम होगा वो सिंगल क्रोमोसोम होगा, एक ही सेट होगा. सपोज कलर ऑफ आई है तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम में कलर ऑफ आई का जीन होगा, दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा. सपोज कलर ऑफ स्किन है तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम में कलर ऑफ स्किन के जीन्स होंगे, दूसरा नहीं होगा. तो यहाँ पर दूसरा सेट ही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक के लिए. समझ में आया? कोई दूसरा सेट है ही नहीं, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई it is known as an N. It is indicated as an N. So if the N number of chromosome, N set of chromosome is present, then it is known as an haploid. So this cell is known as an haploid cell. The organism is known as an haploid organism. दूसरा है diploid. Diploid का मतलब होता है diploid यानी कि डाई यानी कि दो. यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है उसके कितने सेट होंगे, दो सेट होंगे. यहाँ पर कितना होगा 2n. अगर 2n है तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स है वो कैसे होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि पेयर में होंगे. ओके, सो द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर एंड होमोलोगस क्रोमोसोम. देखिए पेयर में है दोनों. यहाँ पर जो भी
सपोज यहाँ पर आई के कलर का जीन है तो यहाँ पर भी आई के कलर का ही जीन होगा दूसरे क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 सेट में प्रेजेंट है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एन 2n, यानी कि 2 सेट ऑफ एन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एन 2n, इट इज़ इंडिकेटेड बाय 2n and it is known as a diploid. Okay, so the cell which is having 2n number of chromosomes are known as a diploid cell. Organism which is having 2n number of chromosomes are known as a diploid organisms. Next one, that is a polyploid. Polyploid यानी कि 2 से अगर ज़्यादा है क्रोमोसोम, 2 से ज़्यादा अगर सेट है, सपोज यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा है, सपोज 4 भी है, 5 भी है, तो अगर पॉलीप्लॉइड है यानी कि 2 से अगर ज़्यादा क्रोमोसोम है एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए, देन दिस इज इंडिकेटेड बाय n raised to n, that is an polyploidy. Suppose 3 है then it is known as 3n, 4 है then it is known as 4n. Okay, so 3n 4n they are known as an polyploidy, and generally polyploidy is found in rare case. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या तो हेप्लॉइड होंगे या तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे वी आर एन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बिकॉज आर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ पेयर, दैट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, दैट इज इन बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन क्रोमोसोम्स। बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, टेट्राड भी क्रोमोसोम ही है। ऐसे जो टर्म्स है, बाइवेलेंट है, टेट्राड है, मोनोवेलेंट है, डायड है, ये जो सारे टर्म्स है, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दिस टर्म्स विल यू कैन फाउंड इन दिस चैप्टर, दैट इज इन सेल साइकिल एज वेल एज सेल डिवीजन। दिस टर्म्स इज एक्चुअली वी कैन फाउंड इन होल बायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ जगह पर ये सारे टर्म्स है वो आएंगे ही। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन बाइवेलेंट एज वेल एज टेट्राड। बाइवेलेंट क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? अगर 2 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज बाइवेलेंट। ओके, बाइवेलेंट। और दूसरा इसको बोलते हैं टेट्राड, इसको ही बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब है कि 4 क्रोमेटिड है। देखिए क्या है यहाँ पर, 4 क्रोमेटिड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्राड। ओके, सो अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज बाइवेलेंट or tetrad. Why tetrad? Because 4 chromatid is present in homologous chromosome. Why bivalent? Because 2 chromosomes are present. Okay, next one, that is an monovalent or diad. You can see here monovalent or diad. Why monovalent? Because 1 chromosome is present only, so it is known as monovalent. Why it is known as diad? Because 2 sister chromatid is present and that's why it is known as a diad. Okay, next one, that is an autosome and allosome. Autosomes are the set of chromosomes. Autosome are the chromosome which is not participating, or we can say it is not providing a characteristic of an sex of an specific organism. Suppose an individual is an we can say an male or female. Okay, so individual is male and female is denoted by the specific chromosome which is known as an allosome. And whatever the other characteristic of an male as well as female, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होती है। ऑब्वियसली 2 आइज़ होते हैं, 2 ईयर होते हैं, 1 नोज़ होता है, 1 माउथ होता है, ऑब्वियसली स्किन का कलर भी होता है, किसी का वाइट होता है। तो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल इज सिमिलर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑटोजोम्स, बट one sex organs which is different in male as well as female, and this is because of the allosomes. So in human beings 23 pairs are found
22 pairs are autosomes plus one last pair, 23rd pair is known as an allosome. Okay, so in human being we are having an 23 pair of n chromosomes, in which 22 pairs of chromosomes are autosome, which is responsible for the other characteristic. Okay, and last pair, that is an 23rd pair of an chromosome, is known as an allosome, which is specific, which will determine the sex of an organism, whether it is male or whether it is female. Okay, so in case of an female, this 23rd pair is having XX chromosome. अगर XX क्रोमोसोम है तो क्या होगा, फीमेल होगा. XY क्रोमोसोम है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होगा, मेल होगा. ओके, बाकी जो 22 पेयर है दोनों में, फीमेल में एज वेल एज मेल में, दोनों में ये जो 22 पेयर है वो सिमिलर होंगे. ओके, एक ही पेयर डिफरेंट होगी, मेल में होगा XY क्रोमोसोम, फीमेल में होगा XX क्रोमोसोम. So it will determine this last pair, this allosome is determining the, we can say, sex of a specific organism. Understood? Okay, so these are the specific, or we can say some terms, important terms, which you can find in this chapter, which you can find in another chapter of an biology. Thank you.